Very good morning, students of class 10th. My dear children, we have completed the two important chapters, one from political science, that is your power sharing, and the chapter number 1 from your geography, that is your resource and its development, children. And we have already completed our exercise and all. So let's start our journey of economics with our first chapter, and this chapter is called as your development. So children, this is your social science, your sub-subject is economics, and your chapter number 1 is development and its goal. So in today's class we are going to start with the introduction about this chapter only, and we are going forward with the meaning of development, as well as we are going for the different people are having different development goals. So these are the topics that we are going to take today, or we are going to deal today. So we start with the topic. Students, if we are talking on the chapter at a glance, we are giving a very important meaning of the development. Then comes to, it means you have to go through with what do you mean by development. Then development, the different people are having different development goals. So these are called as development promises. Then some other factors other than income, some other goals are there, like safety, security, freedom, dignity. All these are the goals which are other than your income. Then children, we are going towards the national development. Children, इसमें हम लोग पढ़ेंगे about the status of the development. Here we are going to compare the high income group country, then middle income group country, and lower income group countries on the basis of your World Bank report, right? Then we are going to learn the case studies of Haryana, Kerala and Bihar in terms of HDI, that is Human Development Index. These are the some other aspects, income, other than we have learned the income, other than the criteria of your development. Then we are going towards to have some body marks indexes, sustainability of development in terms of other aspects of your development. Some terms to be learned that are including like life expectancy ratio, infant mortality rate, combined enrollment ratio, then what is per capita income, then literacy rate, sex ratio, death rate, birth rate, etc. It means all these are the attributes of the Human Development Index. We are going towards it. And children, simultaneously I would like to give the notes too from this chapter. So we begin our journey of the chapter development, or you can say journey of your economics. Students, this is, if you are talking about what do you mean by the development, so development is accounting in the terms of a continuous progressive growth. Fine, it is a progressive growth of an individual, if we are talking not in terms of economic development, but all the aspects of the life is called as development. Children, यहाँ पे जो development का मतलब जिसके पास मनी ज़्यादा है वही डेवलप्ड है, या जो पुअर है वो डेवलप नहीं है, या जिसके पास अदर एस्पेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ या इनकम, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है उसको लेकिन इनकम कम है, तो हम कहेंगे वो डेवलप नहीं है.
दिस इज़ नॉट अबाउट दैट. सो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डेवलपमेंट मीन्स, तो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल लीड्स टू द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटैलिटी बेटा, in terms of individuals in totality. Individual is an social animal, so it needs what? It needs a development in all its sphere of his life. If we are talking about the political, yes, we know economical, cultural, health, educational, social, etc. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिकली साउंड कंट्री है, तो हेयर वी आर लिविंग इन अ पीसफुल एंड हारमोनियस मैनर. यहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. यहाँ पे सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है. जो गवर्नमेंट है वो हमारे अपने सिटीजन्स के लिए वो उनके वेलफेयर के बारे में सोचती है ना. इकोनॉमिकली हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है कि हम अपने आप को इम्प्रूवाइज करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. फिर हमारा कल्चरल हेरिटेज, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इट. देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ इन टर्म्स ऑफ बोथ, दैट इज़ द मेंटल एज वेल एज द फिजिकल टर्म्स. आप लोग देख रहे हैं कि अभी पेंडेमिक में गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस एंड वी द पीपल ऑफ अ गवर्नमेंट, वी द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स देम. अगर हम एजुकेशनल सिनारियो में देखें तो येस, एजुकेशन इक्वलिटी सबको इन्हांस की गई है. फ्री एजुकेशन सबको दिया जा रहा है ना. इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सोसाइटी में भी है कि सोसाइटी में हर वर्ग क्या है बेटा, एवरीवन इज़ इक्वल. सो इफ़ वी आर टॉकिंग या जस्टिस की हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट वो सब लोगों के लिए है. इट मीन्स एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के इर्द गिर्द जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी है या एस्पेक्ट्स उसके इर्द गिर्द, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इन सब का प्रोग्रेसिव स्टेट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द डेवलपमेंट चिल्ड्रन. हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को कोई भी राइट नहीं दिया गया है, लेकिन वो देश इनकम के मामले में बहुत इम्प्रूव्ड कंट्री है. क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम कह सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है? हाँ, इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन हम ये कहें कि जेंडर बेस्ड या सोशल बेस्ड वो कंट्री इकोनॉमिकल वो कंट्री डेवलप नहीं है बेटा. जिस कंट्री में एक ह्यूज गैप है बिटवीन द रिच एज वेल एज द पुअर, और एक कंट्री में जहाँ का कल्चरल हेरिटेज स्ट्रॉन्ग नहीं है या जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो के अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तो क्या हम कहेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट है किसी इंडिविजुअल का? नहीं बेटा. तो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टोटैलिटी बेटा, ठीक है, इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ टोटैलिटी. So it is a progressive growth of an individual in all aspects of life is called as development. It leads to the development of an individual in totality like political, economical, cultural, health, educational, social, etc. This is what we call it as development. Students, this is the most important aspect of your chapter. बहुत important, बहुत easy. Chapter is quite easy, children. स्टूडेंट्स, एक कहते हैं ना, एक सिनारियो है कि हर व्यक्ति, और हम कह सकते हैं एवरी इंडिविजुअल आर हैविंग, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द थॉट, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, in terms of their development goals, in terms of the aspiration in what exactly they want to do in their life, है ना. तो हम ये कहेंगे कि in a society we came up with the different walk of different people. They came up with they have come up with the different scenario of their occupations, right? डॉक्टर्स की अपनी सोच है डेवलपमेंट के बारे में, टीचर्स की अपनी सोच होती है. वाई? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, है ना. एक इंडिविजुअल या ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, वो अलग है. तो अगर वो अलग है तो उनके सोच और उनकी राय किस मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, वो डिफरेंट हो सकती है.
यहाँ पे कभी कभी क्लैशेस भी आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक ग्रुप में हम देखें तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई की मंशा या सोच एक जैसी हो, है ना। तो दिस एक्चुअली एवरीबडी दे सीक दोज थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। हर कोई भाग रहा है उसके पीछे जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। समटाइम्स किसी को पीस चाहिए तो किसी को मनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमने सोचा कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट गोल है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। आपके डिफरेंसेस आपके पेरेंट्स से या आपके भाई बहनों से भी हो सकते हैं। किसी ने कहा पढ़ाई से हम आगे बढ़ेंगे, किसी ने कहा पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, है ना। किसी ने कहा खेलकूद से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। किसी ने कहा कि खेलकूद काफ़ी नहीं होता। किसी के लिए वॉचिंग टीवी एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। किसी के लिए रीडिंग बुक हो सकती है एंटरटेनमेंट, या क्या कहते हैं, नॉलेज को गेन करने का एक मीडियम, पर किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट। सो लेट्स वी काउंट डाउन दैट समटाइम्स ये जो डिफरेंसेस है ना सोसाइटी में बेटा, वो क्लैशेस भी उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो लेट्स वी आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं कि चिल्ड्रन, अगर मैं कहूँ कि एक लैंडलेस रूरल फार्मर है या एक लेबर है, उसके नज़र में डेवलपमेंट क्या है? उसकी नज़र में डेवलपमेंट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्क मिले, क्योंकि वो लैंडलेस है। सबसे पहले उसको लैंड मिले, जो उसकी लैंड उसकी अपनी हो, ज़मीन मिले उसको। उसके बाद उसको अगर ज़मीन ना मिले तो वो ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, यानी मोर डेज ऑफ वर्क, सो दैट ही कैन गेट अ बेटर वेजेस। वो ये भी चाहता है कि एजुकेशन मिले उनके बच्चों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी सामाजिक भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसको कोई सप्रेस ना कर सके, है ना। यानी कि इकोनॉमिकली वो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहता है। कौन बेटा? वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडलेस रूरल फार्मर। तो उसके नज़र में डेवलपमेंट गोल ये है, बट हो सकता है दूसरे की नज़र में ना हो। नेक्स्ट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट font is quite smaller as compared to the other previous one. So children, if we are talking about some other factors like एक prosperous farmer है from पंजाब, उसकी नज़र में जो डेवलपमेंट है वो क्या है? According to him, the development goals are in terms of higher income, higher support price should be given to his crop. वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड में जाएं, वो सेटल्ड हो, वो एजुकेशन उनको मिले। ये किसका है? ये एक ऐसा प्रॉस्परस फार्मर है जो कि पंजाब से आया है। और हम ये जानते हैं कि पंजाब का किसान बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉस्परस होता है। वो उनको हम कह सकते हैं उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा होता है, हैविंग अ गुड सैलरी इन टर्म्स ऑफ। लेकिन उनकी भी अपनी इच्छा है। उनका ये है कि उनके खेत लहलाते रहे, उनके क्रॉप्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ता रहे, उनको मिलता रहे, उनकी इनकम बढ़ती रहे और उनके बच्चे बाहर जाके सेटल्ड हों, है ना। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एक ऐसा फार्मर जो कि अपने खेत के अपने सिंचाई के लिए, अपने क्रॉप्स के सिंचाई के लिए वो डिपेंड है रेन पे, उसकी नज़र में डेवलपमेंट गोल क्या होगा? ये बोर्ड में आ चुका है वीडियो। उनकी नज़र में इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। अगर बारिश नहीं आ रही है तो उसको ये लगे कि वो कुएं से या कैनाल इरिगेशन का इस्तेमाल करके या ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके वो क्रॉप को ग्रो कर सकता है ना। उस केस में जब, क्योंकि वो पूरी टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है बेटा? रेन पे फॉर देयर ग्रोइंग क्रॉप्स।
इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट से मदद भी की उम्मीद भी रखता है। वो चाहता है कि चीप और फॉर्मल लोन्स उसको मिल सकें। वो चाहते हैं कि उसको सीड्स में या फर्टिलाइज़र्स में उसको गवर्नमेंट प्राइस यानी सब्सिडाइज्ड प्राइस मिल सके। ठीक है, यानी कि वो सहूलतें चाहता है। ये वो व्यक्ति है, वो फार्मर है जो कि अपने खेत की या अपने क्रॉप्स के सिंचाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रेनफॉल पे। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड, वो क्या चाहती है? एक रूरल वुमन है जो कि यानी गांव की महिला, वो क्या चाहती है? एक गांव की महिला चाहती है कि गेट अ गुड, वो चाहती है कि द लैंड शुड बी नो जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहती। इसके साथ साथ जो चूँकि वो एक फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली है ना, लैंड ओइंग फैमिली, इट इज़ नॉट गोइंग बेटर, इट इज़ लैंड ओइंग फैमिली है जिसके पास ज़मीन है। तो सबसे पहले उसकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज यानी कि कल्टीवेट कर सके, कल्टीवेशन उसको मिले, क्रॉप मिले, है ना, एक ये उसकी एक मंशा होती है। फिर वो ये चाहती है कि घर पे उसको कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना हो। वो ये चाहती है कि डिसीजन मेकिंग में उसकी भी बात सुनी जाए, नीड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। हाँ, इसके अलावा वो ज्वेलरी भी चाहती है। वो ज्वेलरी किस लिए चाहती है बेटा? अपने पहनने के लिए नहीं, बल्कि वो ये सोचती हैं कि कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको बेचकर अपना काम कर सकूं, है ना, या किसी को मदद दे सकूं, या अपने घर में कोई काम हो उसमें पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसको बेचकर या गिरवी रख के मैं उससे अपना काम निकाल सकूं। कहने का मतलब ये है कि शी ऑल्सो नीड्स ज्वेलरी। वो चाहती है गुड एजुकेशन उसके बच्चों को। तो ये डेवलपमेंट गोल किसका हो सकता है बेटा? रूरल वुमन का। ठीक है, फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, द वर्ड इज कॉल्ड एज बेटा OWNING, द लैंड ओइंग फैमिली। नेक्स्ट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक अनएम्प्लॉयड यूथ, ये भी आ चुका है आपका बोर्ड में। एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? सीधी सी बात, उसको वो एम्प्लॉयड हो, उसको जॉब मिले, सैलरी मिले। हाँ, एक और चीज़ है, उसको एजुकेशन मिले, वो एजुकेट हो। द नेक्स्ट और द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लासेस, एक बॉय है फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, शहर का एक बच्चा जो कि उसके फैमिली इज़ गुड इन गुड इन इकोनॉमिक सिनेरियो। तो उनकी नज़र में डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? उनकी नज़र में डेवलपमेंट गोल है गेटिंग हायर एजुकेशन, पॉकेट मनी शुड बी इंक्रीज्ड, है ना, टाइम टू टाइम। हाई क्वालिटी गुड शुड बी यूटिलाइज्ड बाय हिम, चाहे अच्छी बाइक हो, चाहे अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे परफ्यूम्स हो, ड्रेसेस हो, शूज़ हो। ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन नहीं चाहता, बिल्कुल हो, वो जॉब भी चाहता है। बट वो चूँकि एक बच्चा है, इट्स अ बॉय फ्रॉम द रिच फैमिली, तो अपार्ट ऑफ दैट वो लेटर ऑन वो सेकेंडरी हो जाता है। बट जो प्राइमरीली वो क्या चाहता है कि उसके पास उसको एक तो फ्रीडम है ही है, एजुकेशन भी उसको मिलती रहे, अच्छे स्कूल में पढ़े, और वो बाइक, मोबाइल फ़ोन इन सब का इस्तेमाल कर सके। ये एक डेवलपमेंट गोल। एक लड़की जो रिच फैमिली की है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसके नज़र में फ्रीडम, इक्वलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी इन अ सोसाइटी। शी नीड्स एजुकेशन, वांटेड टू गेट जॉब, वांटेड टू मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट, and also she wanted no discrimination in terms of anything. She also wanted a participation in decision making etc. Most important, कई बार पूछा गया है कि नर्मदा वैली का एक आदिवासी वो क्या चाहता है? सबसे पहले बेटा वो सेटलमेंट होना चाहता है। सेटलमेंट इन टर्म्स
कि nobody will displace from their place या from his place, अगर हम आदिवासी की बात करते हैं, उसको कोई वहाँ से हटा ना सके। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल राइट जो फॉरेस्ट पे है, कई बार होता है कि गवर्नमेंट ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, वो लोगों को, आदिवासियों को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो एक ट्रेडिशनल राइट ऑन फॉरेस्ट उनको मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए। इसके साथ साथ उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो, है ना। वो ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को या खुद को भी उनको जॉब मिले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। तो इस तरीके से चिल्ड्रन, बाय ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ द एग्जाम्पल्स वी केम टू नो दैट an individual due to their differences are different from others। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, उनके अपने थॉट्स होते हैं, उनके अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने एक्सप्रेशंस दूसरे पे थोपें, है ना। तो कभी कभी डेवलपमेंट के मामले में हमारे जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसी पॉइंट को रखा गया है आपके इस पर्टिकुलर स्लाइड में, और ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, खासकर जो मैंने लास्ट में दिया है आपको विद एग्जांपल्स दैट द पीपल आर हैविंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ देयर गोल इन देयर लाइफ, development goals in their life. Every individual are having different goals, so this is quite important। और ये 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, खासकर ये 1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। सो टुमारो आई वुड लाइक टू टेक योर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द इनकम और द नेशनल डेवलपमेंट इनकम, the other aspects and the development goal of, you can say, include with the national development. So we are dealing with that, right children? So by this, thank you very much for your support and goodbye, take care, God bless you.